Abhishek, please introduce yourself. Sir, I will introduce myself from my education qualifications. Sir, I have completed my post-graduation in physics in 2018. Thereafter, I completed my Bachelor of Education in 2021. Recently, I have been selected as a PGT Physics under the state government. And my hobbies are doing farming and study and reading about Pakistan. Your hobbies are doing farming and Study and reading about Pakistan. study and reading about Pakistan. That's an interesting hobby. चलिए बात करेंगे इसके बारे में. Okay. Abhishek, let's come to some current affair first of all. I believe you have read about the Lok Sabha election results. Yes, sir. Okay. Let's come to the Haryana. How many seats of Lok Sabha in Haryana? Sir, there are 10 seats in Haryana, 10 Lok Sabha seats. How many are reserved? How many of the Lok Sabha seats are reserved for scheduled caste? Sir, 2 seats are reserved. One is Ambala and second is Sirsa. Sirsa. Okay. Then recently there has been a news that some persons, some important political personalities from Haryana got inducted in Central Cabinet or Council of Ministers. Yes, sir. So can you suggest any such names? सर तीनों बता दूं सर. तीन नेम लिए गए सर. श्री मनोहर लाल खट्टर, श्री राव इंद्रजीत सिंह, श्री कृष्णपाल गुज्जर. पोर्टफोलियो एलोकेशन भी हुआ, कौन कौन से मंत्रालय में आएंगे? सर श्री मनोहर लाल खट्टर जी को मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग अफेयर्स दिया गया है एंड पावर मिनिस्ट्री. श्री राव इंद्रजीत को मिनिस्टर ऑफ स्टेट अंडर द स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्टर. और सर श्री कृष्णपाल गुज्जर जी का सर मेरे को याद नहीं है सर. आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट सर. That's perfectly fine. Okay, recently been news again that some of the chief ministers, some of the former chief minister, yes sir, also made ministers. Can you say any such name? सर श्री शिवराज सिंह चौहान फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड सर I cannot recall the name of that personality. One is from Assam also, sir. Sarvanand Sonowal. Yes, sir. Anybody else? Sir, no, sir, I'm not aware of. I suggest you Amal Khattar sir. Ji. Yes, sir. Okay, I have perfectly recalled this. fine. Okay, here we come. That recently there been an incident that an woman MP elect from Mandi, Himachal Pradesh, Yes, sir. Madam Kangana Ranaut, she Yes, was traveling through Chandigarh airport and she was slapped by a CISF personnel. Yes, sir. And the news or the information in the news is that this incident happened because that CISF personnel was enraged because of some comments made by actress Kangana Ranaut about farm protest. And the CISF personnel said that because my mothers were there, so she was scolding my mothers. So I was enraged and I slapped. Yes, sir. Just suppose this is the whole truth. We know there should be a committee to investigate and the whole truth will come out. Yes, sir. But suppose this is the whole reality. Okay, sir. Then, in your opinion, what steps to be taken, point one, against the CISF personnel? Sir, after पहले तो सर First of all, should Yes, we take any action against CISF personnel, or we should condone the CISF personnel because many emotive issues are there. Like if anybody calls our parents, our grandparents, so obviously we will be enraged. So can that lady constable be condoned of as well as a humanitarian gesture? What is your thought? सर अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा हूँ सर तो एज पर द लॉ शी नीडेड टू बी अकाउंटेबल बिकॉज वो सिविल कैपेसिटी में काम कर रही हैं. जो भी उनकी गवर्नमेंट कैपेसिटी में काम करने के हिसाब से वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और उनको एक गवर्नमेंट सिविल सर्विस की वैल्यू ब्यूरोक्रेटिक एनोनिमिटी वो रखनी चाहिए जिसमें नॉन पार्टनरशिप भी एक वैल्यू है सर. तो वो उनको फॉलो करनी चाहिए सर. तो एज पर दी सिविल सर्विसेज रूल और आर्म फोर्स सर्विसेज रूल सर उनके ऊपर सर कार्रवाई करनी चाहिए. Okay. बट देयर शुड पहले एज पर द नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस उनको पहले सुनना भी चाहिए सर.
पहले हाँ ऑडियो फ्रॉम पार्ट यस सर। और फेयर एनफ। ओके, अगर बाय चांस खुद मैडम कंगना रनौत एक अच्छा जेस्चर दिखाते हुए, कई बार करते हैं पॉलिटिशियन Yes, ऐसा sir. के, है ना, पास में भी हुआ है, then केजरीवाल गॉट स्लैप्ड एंड सम अदर पर्सनालिटी बीन स्लैप्ड, ये हो चुका है यस सर। एंड मैनी इंस्टेंसेस लोगों को माफ कर दिया गया है ना, so much so that we have heard about Nalli's case when Priyanka Gandhi, the daughter of late Rajiv Gandhi, personally requested the government of India that the culprits, the convicted person in Rajiv Gandhi assassination case, they should be pardoned. And lately, they got released from the jail as well. यस सर। And that is the most heinous crime. But killing, assassinating a prime minister, ये पहले भी हो चुका है. Again, in that light, if I say Madam Kangana Ranaut request that the lady should be pardoned of, तो क्या हम सियासत पर्सनों को माफ कर सकते हैं, कोई कार्रवाई ना करें? सर अगर वो अपने बिहाफ पे खुद माफ कर रही हैं तो वो उनका जेस्चर होगा, बट एज ए सिविल, एज ए आर्म्ड पर्सनल, शी हैज़ वायलेटेड द रूल्स, देन वी शुड टेक सम एक्शंस ऑन हर। तो आप इनकी नौकरी लेके ही मानेंगे? सर वो एज पर द रूल्स वी हैव टू डू। Okay, okay. What are the 3 qualities to become a successful bureaucrat? सर मेरे हिसाब से ब्यूरोक्रेटिक एनोनिमिटी, नॉन पार्टनरशिप एंड एम्पैथी सर। On partition? पार्टिजनशिप, हाँ, और एम्पैथी सर। empathy. Okay. What else? 3 मैंने पूछी, पहली क्या बताई थी आपने? एनोनिमिटी सर, ब्यूरोक्रेटिक Anonymity. एनोनिमिटी। Anonymity. Fair enough, fair enough. So please then हाँ जी। अभिषेक, आपका ऑप्शन क्या था? सर मेरा ऑप्शन फिजिक्स है सर। फिजिक्स से था, ठीक है। तो आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब कुछ फिजिक्स में किया फिजिक्स हुआ से है? किया सर। और पोस्ट ग्रेजुएशन तो आपकी डीयू से है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से? Yes, sir. रामजस कॉलेज। यस सर। ओके, तो फिजिक्स से सिविल सर्विसेज में आने का क्या लॉजिक है आपका? Why? सर मेरा शुरू से इंटरेस्ट सिविल सर्विसेज में था सर। फिजिक्स में मेरा 12th में इंटरेस्ट था, मैंने उसको परस्यू किया। उसके बाद सर ग्रेजुएशन में आते आते मैंने सिविल सर्विस ज्वाइन करने की सोची थी सर। फिर साथ के साथ सर मैं फिजिक्स की भी तैयारी करता रहा और साथ के साथ सिविल सर्विसेज की भी तैयारी की है सर। तो अभी आप टीचिंग कर रहे हैं ऑलरेडी? सर अभी मैं सिलेक्टेड हूँ, मैं अपॉइंटमेंट की वेट कर रहा हूँ सर। ओके ओके ओके। तो आपको नहीं लगता कि आप ऑलरेडी एक बहुत अच्छे टीचर बन चुके हैं? आई मीन, आई डोंट सी दिस काइंड ऑफ बायोडेटा जहाँ पे इतनी ज़्यादा सिंक्रोनाइजेशन देखने को मिले। अदरवाइज आज की डेट में ग्रेजुएशन कुछ, पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ, काम कुछ और कर रहे हैं, बट आपकी तो बहुत ज़बरदस्त सिंक्रोनाइजेशन दिख रही है। सो आई थिंक यू कैन बी अ रियली गुड फिजिसिस्ट और यू कैन बी अ रियली गुड टीचर ऑफ फिजिक्स। So when I see you going into civil services, I see a resource getting wasted. Because civil services तो कोई भी कर सकता है. Anyone can become a civil servant from any field. But the kind of resource that you have already become, don't you think you will be a much better teacher than a civil servant? सर जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको कि फिजिक्स में मेरा इंटरेस्ट है और फिजिक्स में एडमिनिस्ट्रेशन में भी यूज़ कर सकता हूँ सर। जैसे कि जैसे सर मेरी फिजिक्स ने जो मेरे को स्किल्स दी हैं, एनालिटिकल स्किल्स को एनालाइज करना, पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स को, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं सर, क्रिटिकल एनालिसिस, साइंटिफिक थिंकिंग एंड क्वांटिटेटिव स्किल्स भी हैं सर, जैसे डेटा को इंटरप्रेट करना, साथ में लॉजिकल रीजनिंग है सर, एंड एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग सर। ओके। तो मुझे लगता है कि मैं फिजिक्स को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन में एक अपना बेहतरीन रोल अदा कर सकता हूँ सर। क्रिटिकल एनालिसिस पे एक बात बताइए मुझे। इस बार इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान कास्ट सेंसस की बहुत डिमांड की गई। Yes, sir. कुछ पार्टीज की तरफ से। तो टेल मी, क्रिटिकली एनालाइज, like in brief, what is the rationale behind a caste census, whether it should be done or whether it should not be done? यस सर। सर कास्ट सेंसस अगर हम देखें इंडिया में, कास्ट हैज़ बीन द पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, सो वी कैन नॉट इग्नोर दैट। कास्ट के हिसाब से ही हमारी सोसाइटी में रिसोर्स का एलोकेशन भी है सर। तो कास्ट सेंसस एक बार अगर हम सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, अगर हमारे जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनकी देखें तो कास्ट सेंसस होने भी चाहिए सर, अगर उनके सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का पता लगाने के बारे में। This will lead to further fragmentation of an already fragmented society. यस सर, आई विल कम टू दैट। Okay. सर अगर हम उनके इंडिकेटर्स देखें हैं, बट
अगर हम इंडिया का एज ए इंटीग्रेशन देखें, नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल इश्यूज पर बात करें, तो कास्ट शुड बी थिंग ऑफ पास्ट, ओके, बिकॉज इट विल मोर फ्रेगमेंट आवर सोसाइटी. तो फिर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर कास्ट सेंसेस अभी मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि कास्ट सेंसेस में जो हमारे शेड्यूल्ड कास्ट हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, वो मोर बैकवर्ड हैं सर. और गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ट्राई भी कर चुके हैं गवर्नमेंट कास्ट सेंसेस करने के लिए. जो डेटा वहां से निकल कर आया है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग था सर, और उसको कंपाइल करने में भी हमें 10 साल लग गए, पर अभी तक कंपाइल नहीं हुआ. चलो, कंफ्यूजन दूर करने के लिए तो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ फॉर्मूलाज, देयर कैन बी लॉट ऑफ डेटा सेट्स. जैसे पिछले 10 सालों में ही हमने कितने इंप्रूवमेंट किए डेटा कलेक्ट करने में. इस बार जो सेंसस होगा वो कॉपी पेपर पे थोड़ी होगा, इट विल sir, बी हेल्ड ऑन digital. टैबलेट्स, और रियल टाइम में डेटा अवेलेबल होगा हमारे पास. सो दैट बिग डेटा को कैसे मैनेज करना है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. लेकिन होना तो चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? हमें कैसे पता चलेगा कि कास्ट विद इन अ कास्ट को सही तरीके से एलोकेशन की गई है, रिजर्वेशंस की या नहीं की गई है? सर मुझे लगता है कि कास्ट सेंसस से सोसाइटी और पोलराइज होगी, ओके, और कास्ट सिस्टम एनग्रेन्ड हो जाएगा बजाय कि हमें एलिमिनेट करने के. तो उस अकॉर्डिंग तो फिर ओवरऑल रिजर्वेशन ही चली जानी चाहिए, बिकॉज दैट आल्सो लीड्स टू सर्टेन काइंड ऑफ पोलराइजेशन. सर रेजर्वेशन इज अबाउट द अफर्मेटिव पॉलिसीज. तो जो जो बैकवर्ड टू बैकवर्ड है विद इन द बैकवर्ड में, तो उन तक लिमिटेड रखना चाहिए सर रिजर्वेशन को भी सर. मीन्स, और वो गवर्नमेंट ऑलरेडी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स की सेंसस करवा के करती है सर. चलिए ठीक है. फिजिक्स आपका सब कुछ रहा है. आई थिंक फिजिक्स इज एवरीथिंग दैट यू हैव बीन डूइंग. पिछले साल का फिजिक्स नोबेल किसको मिला है 2023 में? सर आई कैंट रिमेंबर द नेम सर. किस इन्वेंशन या डिस्कवरी के लिए मिला है? सर आई कैन गैस, आई थिंक अल्ट्रा सेकेंड ऑटो सेकेंड लेजर सर, प्रोब के लिए सर. ओके, क्या होते हैं ऑटो सेकंड लेजर्स या प्रॉम्प्ट्स? सर बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए एक रेडिएशन को एटम या मटेरियल पर डाला जाता है सर. कितना स्मॉल? एटो सेकंड इज एटो सेकेंड इज सर 10 raised to power 14. सर आई एम सॉरी आई कैंट अच्छा, रिकलेक्ट इट सर. ठीक है. तो व्हाट इज द प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस? सर एटम्स की प्रोब पता हम कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर जान सकते हैं सर इससे हम. तो उसकी रियल लाइफ में एप्लीकेशन क्या है? रियल लाइफ में सर अगर स्ट्रक्चर पता चलेगा तो जैसे लेजर्स है सर, लेजर में उसका हम हमारे जितने भी डिफेंस में है सर, या फिर हमारे हेल्थ में लेजर्स का यूज होता है, तो उसको एक अच्छी तरह से उसको इम्प्लीमेंट कर. जैसे as a person who has this authoritative in physics, tell me any two innovative applications of laser जितनी हमें ऑलरेडी पता है उसके अलावा. What can lasers do? जैसे मैंने इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है कभी पिछले कुछ टाइम में. So I'm curious कि लेजर और क्या कर सकती है? सर लेजर डिस्टेंस पता कर सकती है सर, गैलेक्सीज के बीच में या स्टार्स प्लैनेट्स के बीच में सर. सर लेजर डिफेंस में तो पता ही है, प्रिसीजन के हो लिए. रही है. इसके बारे में कोई न्यूज़ थी कि लेजर्स रिलेटेड कुछ वेपन्स कोई कंट्री यूज करना चाह रही है. आपको कुछ आइडिया इसके बारे में? नो सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट. ओके, और क्या एप्लीकेशन होगी? सर लेजर्स, वही मैंने आपको बताया, क्वांटम फिजिक्स में लेजर्स का एक बहुत बड़ा रोल है कि आप एटम्स का आप वो कर सकते हैं, स्ट्रक्चर वगैरह जान सकते हैं, जिससे एक प्रॉपर क्वांटम फिजिक्स का एक डोमेन जो अनएक्सप्लोर्ड है उसको हम एक्सप्लोर कर पाएंगे सर अभी तक. इंडियन फिजिक्स नोबेल लॉरिएट्स का नाम बता सकते हैं आप? कितने लोगों को मिला है इंडिया में? सर डॉक्टर CV रमन सर. ठीक है. सर ये नहीं एक ही को मिला है? सर, एक को नहीं मिला सर मेरे को. अच्छा, आपको सीवी रमन का नाम याद है. ठीक है, ठीक है. उनकी क्या इन्वेंशन थी? सर रमन इफेक्ट सर. व्हाट एग्जैक्टली इज इट? सर जब हम कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट, इट्स बिट साइंटिफिक सर, मोनोक्रोमेटिक लाइट किसी मॉलिक्यूल पे डालते हैं तो हमें रमन लाइन मिलती है. अपार्ट फ्रॉम दैट लाइन ऑल्सो दोज आर वीक लाइन्स. तो सर जो हमारा स्कैटरिंग है सर उसमें ये काम आता है, और जो हमारा स्काई ब्लू है ये वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ रमन इफेक्ट, इससे एक्सप्लेन हुआ सर. ये जो आपने स्पेक्टिकल्स लगाई हुई हैं, इसमें कौन सा लेंस है? सर इसमें कॉनकेव लेंस है सर. कनकेव लेंस है. Yes. किस डिफॉर्मिटी को दूर करने के लिए? मायोपिया के लिए सर. मायोपिया के लिए. राइट, राइट. अभिषेक, हरियाणा के बारे में एक दो चीजें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ. एंड इंटरेस्टिंगली आपने पाकिस्तान पे अपनी हॉबी बताई है.
हरियाणा में एक सोशल कस्टम है जिसे मोल्की कहा जाता है। सर सुना है कैन यू आपने प्लीज इसके बारे रिपीट में? सर? मोल्की, मॉल की? MOLKI, यस सर, मोल्की। यस सर। तो क्या होता है ये? सर बेसिकली हरियाणा में सेक्स रेशो बिल्कुल कम हो चुका है, तो उसके कारण गर्ल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है मैरिज के लिए। हम्म, तो लोग बाहर से, यूपी से, बिहार से लड़कियों को, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक पार्ट ही है सर। ओके। वो शादी करके वहां पे लाते हैं, और वो उसलिए कहते हैं सर मोल की, मोल मीन्स ऑफ प्राइस। तो सर वो इसलिए उन्हें मोल की बहू कहा जाता है सर। तो जब तक सेक्स रेशियो स्क्यूड है, इसका और इलाज भी क्या है? ऑफ कोर्स यू हैव टू गेट ब्राइड्स फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। तो इसमें टैबू क्या है? सर उसमें बट एक्सप्लोटेटिव नेचर है सर उसका। उसमें बिचौलिए होते हैं सर, जो बेसिकली बहू के लिए नहीं, वो बेसिकली ह्यूमन ट्रैफिकिंग ही करते हैं सर। और वहाँ यहाँ पर भी आते थे हैं तो उनको एक से दूसरी जगह पर ऐसे ही पैसों में ले दे के फिर से बेच दिया जाता है सर। तो वो बहू नहीं, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट को लाते हैं जिसका वो एक से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं सर। ओके, सो इट्स नॉट लाइक कि कोई बहुत हाई स्टेटस मैरिज हो रही है कि हरियाणा का वो लड़का है और लड़की किसी भी और जगह से है, बहुत अच्छी नहीं सर, खासी जैसे ऐसा नहीं है शादी सर है। ये। इट्स अ सेपरेट स्पेसिफिक काइंड ऑफ इशू, यू मीन? यस सर, तो क्या कारण है इसका? एक तो स्क्यूड सेक्स रेशियो हो गया, यस सर। और सर एम्प्लॉयमेंट सर, हमारे यूथ के पास एम्प्लॉयमेंट की कमी है सर। और ज्यादातर जो हमारा कॉलोनियल माइंडसेट है कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए, हम्म, तभी पेरेंट्स अपनी लड़कियों को देते हैं। तो इसका वन ऑफ द रीजन ये है। अगर आप प्राइवेट में भी कर रहे हैं नौकरी, तब भी आपको वो शादी के लिए अपनी लड़की नहीं देंगे। राइट राइट, ठीक है। अच्छा, आपने बोला कि आपको पाकिस्तान के बारे में पढ़ना लिखना पसंद है। यस सर। इंडिपेंडेंस से लेके अब तक पाकिस्तान में कितनी बार मिलिट्री जनरल्स रूल कर चुके हैं? सर कैन आई थिंक 1 2 4 टाइम्स सर। कौन कौन से? सर फील्ड मार्शल अयूब खान, जनरल, सर एक मेरे को नाम याद नहीं है, मैं आते बता दूंगा। एक जियाउल हक, जियाउल हक सर, जनरल जियाउल हक, और परवेज मुशर्रफ। एंड वन उनका नाम याद नहीं है, बट बांग्लादेश के टाइम जो सेपरेशन था वो उन्हीं के कारण था सर। ठीक है, ठीक है। ऐसा क्या रीजन है, जैसा आपने जितना भी पढ़ा या एनालाइज किया होगा, कि इंडिया और पाकिस्तान में कोई भी पीस एफर्ट कभी फ्रूटफुल नहीं हो पाता, फ्रुक्टिफाई नहीं हो पाता? एनी 3 ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग इट? सर पहली बात तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को हम प्योरली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कह ही नहीं सकते। वहाँ पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का अपना इंटरफेरेंस है, और उनके अपने खुद के कुछ ना कुछ पर्सनल इंटरेस्ट भी हैं सर उनमें। अगर इंडिया एज ए थ्रेट नहीं रहेगा तो पाकिस्तान आर्मी की रेलेवेंस खत्म हो जाएगी सर। तो वन ऑफ द रीजन तो सर ये है। दूसरा रीजन है सर कि जो लोग यहाँ से गए हैं पार्टीशन के टाइम, उनके दिलों में अब भी इंडिया के लिए नफरत है, क्योंकि यहाँ पे पार्टीशन में जितना भी यहाँ पे वो हुआ सर, उनके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन हुआ, तो उन्हें अब भी याद है सर। और तीसरा है रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म सर, वो वहाँ पे बहुत ज्यादा है सर। ओके, पर पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में, देन हाउ इज दैट अ प्रॉब्लम? सर इट्स नॉट अबाउट मुस्लिम सर, इट्स अबाउट योर एजुकेशन। अगर आपको आपके पड़ोसी कंट्री के बारे में ये सिखाया जाएगा कि ये एक थ्रेट है आपके लिए और आपकी एग्जिस्टेंस के लिए भी थ्रेट है। So in that way you are saying Yes, sir. extremism, not like particularly religious extremism. सर ये इसका वन ऑफ द रीजन अफगानिस्तान वॉर भी है सर। Okay. खैबर पख्तूनख्वा एरिया में बहुत सारा यूएस से पैसा आया 1980 के दशक में, जब यूएसएसआर ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया सर। उसके बाद उस एरिया में जितने पठान थे उनको रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट एजुकेशन दी गई सर मदरसों के द्वारा। तो उसके बाद से सर वहाँ पे अब अगर अफगानिस्तान का थ्रेट खत्म हो गया है, या उसको रशिया को निकालने के बाद यूएसएसआर को उसको डाइवर्ट कश्मीर की तरफ कर दिया गया सर। अगर पाकिस्तान को ये बात पता है कि मुजाहिदीन को एस्टैब्लिश करने में यूएस का हाथ था, तो Yes, sir. पाकिस्तान यूएस से अच्छे रिलेशन क्यों रखता है? Why doesn't Pakistan see US as a problem कि इनकी वजह से तो सब शुरू हुआ है? सर पाकिस्तान की सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी है ही नहीं, उन्होंने कुछ भी डेवलप नहीं किया सर खुद का, जिसे वो एक्सपोर्ट कर पाए। कोई तो एक ऐसी foreign- चीज बताइए जो पाकिस्तान हमें एक्सपोर्ट करता हो लेकिन हम उन्हें एक्सपोर्ट नहीं करते बिल्कुल भी। सर शुगर पाकिस्तान, नहीं वो भी हम भेजते हैं उनको, बल्कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड आफ्टर Yes, sir. ब्राजील। कोई एक ऐसी चीज जो पाकिस्तान हमें एक्सपोर्ट करता है, हमने उसे कभी नहीं किया।
हिमालयन सॉल्ट सर, सेंधा नमक जिसे कहते हैं सर, ओके, वहाँ पे जो there's one more. सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ Terrorism is the answer. All right. ठीक है अभिषेक सर. Okay, yeah. Okay. We come to this thing again on Pakistan. This is very interesting topic. What are the four or five provinces people say? Name the provinces of Pakistan. ओके सर. वन इज पंजाब, सेकंड इज सिंध, थर्ड Second इज is? सिंध, Sindh. थर्ड इज बलूचिस्तान, फोर्थ इज खैबर पख्तूनख्वा एंड फिफ्थ इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, देश है आज़ाद जम्मू कश्मीर सर. So that is you considered as fifth province of Pakistan. नो सर, इट इज सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड एरिया सर. Okay, 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 okay. There are some very famous books written by the state heads or the government head of Pakistan. One I remember, Daughter of the East. तो Yes, sir. ये किसने लिखी थी और किसके बारे में किताब है? सर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो सर. सर के बारे में है. यस सर. किसने लिखी थी? सर ये आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट सर. Okay, okay. Who's the father of Benazir Bhutto, man? जुल्फिकार अली भुट्टो सर. Zulfikar Ali Bhutto. And he was assassinated, or rather, say, hanged यस सर. on a vicious court trial Yes, sir. proceedings. During whose regime सर Zulfikar sir was जियाउल हक सर. Ziaullah. यस सर. Okay, okay, okay. There's another very famous book, The Line of Fire. यस सर. ये किस मिलिट्री डिक्टेटर ने लिखी है? सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट सर. Okay, fair enough, fair enough. Just tell me one question, the answer. Recently, or rather, in near past, India has started to prepare its national security strategy. जानते हैं इसके बारे में क्या है, कौन प्रिपेयर कर रहा है, मुख्य बिंदु क्या होंगे नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के? सर मुझे मेन पॉइंट्स तो नहीं पता, बट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो श्री अजीत डोवाल जी हैं, उनके अंडर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को प्रिपेयर किया जाएगा सर. ओके, उसके मुख्य बिंदु क्या होंगे या क्या पेपर होता है ये, इसके बारे में कोई अंदाजा? सर वो लोकल थ्रेट्स को देखते हैं सर, उसमें पहले लोकल थ्रेट्स क्या होते हैं, इंटरनल, एंड देन एक्सटर्नल थ्रेट्स को एनालाइज करते हैं सर. That will be it. नहीं, I think Okay, Abhishek, interview is over. Please rest the mic at the chair. आप वेट करें और हम 3 से 4 मिनट में मिलते हैं. Abhishek, please take on the mic again. अभिषेक, एक बात ऑनेस्टली बताइए, why you want to, अभी इंटरव्यू ओवर है, ठीक है, हाँ सर. that is over, we are just talking on a relaxing manner, genuinely, सच्चाई के साथ, वो इंटरव्यू वाला नहीं. why you want to become a civil servant? सर एक तो जेन्युइन वाला बताना यार, मतलब वो इंटरव्यू बोर्ड वालों को हम तैयार कर ही लेंगे, वो नहीं पूछ रहे हैं आपको. सर मेरा जो फिजिक्स का है वैसे तो सर ये जॉब ठीक है सर, बट इसमें कोई प्रमोशन की कोई एवेन्यू नहीं है सर इसका. और इसमें आगे जाके भी ऐसा कुछ नहीं है कि एक पर्टिकुलर आपको क्लासरूम एनवायरनमेंट में रहना पड़ेगा जहाँ पे करियर का कोई प्रोग्रेशन नहीं दिख रहा सर. और सिविल सर्विसेज में ये प्रोग्रेशन होगा सर, और इंसेंटिव बेस्ड है सर सिविल सर्विसेज भी. मतलब आपने कुछ बढ़िया काम किया तो आपको इंसेंटिव, प्रमोशन या कुछ ना कुछ आपको रिकॉग्निशन में मिलेगा, जो कि इस जॉब में नहीं है सर. ठीक है, तो एक तो ये रीजन सर मेन तो मेरा यही है, और दूसरा तो सर वो तो मैं बता ही सकता हूँ, पब्लिक सर्विस और ये सब सर. ठीक है. शादी हुई आपकी? नहीं सर, शादी तो नहीं सर. ठीक है. तो दो रीजन ये मेन हुए ना कि आपको एक ही तरह का काम करना पड़ेगा और करियर ग्रोथ नहीं है. यस सर. यहाँ पे आपको डाइवर्स Diverse काम करने career को मिलेगा opportunity है और सर. ग्रोथ भी है. हाँ सर. और अगर इंटरव्यू में पूछ लिया तो क्या बताओगे? सर यही डाइवर्स करियर अपॉर्चुनिटी बताऊंगा सर एक तो, सभी और लोग एक diverse प्रमोशन वाला बताऊंगा सर, मतलब पर्सनल करियर गोल है सर. डाइवर्स आज तक कुछ नहीं किया. कंप्लीट करो चलो अपना आप आंसर कि क्यों आप बोर्ड में क्या कहोगे कि व्हाई यू वांट टू बिकम, कि आप यार अच्छे खासे टीचर हो, जो सर ने ही पूछा था. Yes, सर. तो अगर पूछ लिया क्यों सिविल सर्वेंट, तो डाइवर्स और क्या क्या बोलोगे आप? सर एक मेरा लॉन्ग टर्म करियर गोल्स है सर इसमें, क्या लॉन्ग यही सर प्रमोशन और ये सब, करियर प्रोग्रेशन? ठीक है, ये सर करियर प्रोग्रेशन है. और एक सर एक प्रोफेशनल ऑफिस एनवायरनमेंट में मैं काम करना चाहता हूँ सर. वो हर जगह होता है प्रोफेशनल, उसकी बात नहीं है. और बताओ सर बस यही मेरे को 3 दिख रहे थे. अगर उन्होंने आपको ये बोल दिया ना कि आप तो एक सिविल सर्वेंट बनोगे, अगर आप अच्छे शिक्षक बनते हो तो आप 100 सिविल सर्वेंट बना सकते हो, इसका क्या जवाब दोगे? सर इसका ये तैयार नहीं किया सर मैंने.
See, इसको थोड़ा इवॉल्व करो पहले तो आंसर को थोड़ा सा देखो। मुझे पता है आजकल की पता नहीं है, मुझे इस बार नहीं समझ में आ रहा कि क्यों हर कैंडिडेट आके कह रहा है डाइवर्स। ये मतलब 99.9% लोगों ने बोल दिया डाइवर्स डाइवर्स। तो क्या डाइवर्सिटी मतलब, और सिर्फ ये क्यों डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी में तो और फिर बहुत कुछ है। फूड इंस्पेक्टर बन गए तो कौन सी डाइवर्सिटी है, तहसीलदार बन गए तो कौन सी डाइवर्सिटी, सिर्फ एसडीएम में है ना, और Yes, कहाँ पे कौन सी डाइवर्सिटी, बीडीपीओ में क्या डाइवर्सिटी है? एक ही तरह का काम अगर मैं टेक्निकली बात करूँ सर ये पॉइंट अगर मैं पीछे रख लूँ और करियर प्रोग्रेशन वाला आगे रखूँ थोड़ा तो सा मैं बताता हूँ। देखो यार, आजकल पता नहीं किसने सिखा दिया कि हम बिल्कुल ये बात नहीं करेंगे कि सर्विसेज या फिर सोसाइटी की जो है हमें सर्विस करनी है। पता नहीं क्यों हम इतना अलूप होते चले जा रहे हैं कि आइडियलिज्म, एक्चुअली आइडियलिज्म नहीं है, एक तो रियलिज्म है। भाई अल्टीमेटली सिविल सर्विस है, सेवा भाव होना चाहिए। यस सर। मैं जो प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ, है ना सर, आप ऐड कर दीजिएगा जी जी कि थोड़ा पॉइंट ये जरूर रखिए कि सर अभी तो मैं सिर्फ बच्चों को पढ़ा पाऊंगा, ये मेरी लिमिटेड समाज सेवा होगी। मैं सोसाइटी को लार्जर तौर पे सर्व करना चाहता हूँ, ठीक है जी। Yes, sir. उसी में आपकी डाइवर्सिटी हो जाएगी भिन्न प्रकार से। जो मेरी कैपेबिलिटीज हैं उसको मैं रियल जो है गवर्नेंस के अंदर लाना चाहता हूँ। यस सर। अपने हरियाणा को, लोगों को सर्व करना चाहता हूँ, एम्पावर करना चाहता हूँ। और इसके साथ आप अपना पर्सनल ग्रोथ भी ऐड कर दीजिए, सेवा भाव और साथ में पर्सनल ग्रोथ। फिर आप कहते हैं सर करियर प्रोग्रेशन, सोशल रेप्यूटेड टू मी एंड माय फैमिली। यस सर। ये दोनों का मिक्सचर बनाकर आप 3.5-4 लाइन का एक आंसर प्रिपेयर कीजिए। यस सर। तो एक होलसम आंसर तैयार होगा कि आप सर्विस के लिए भी आ रहे हैं और आप जो है अपनी भी रेपुटेशन, ठीक है, दोनों चीजें बैलेंस हो जाएंगी। यस सर। पॉइंट 1। सिर्फ डाइवर्सिटी वो तो अधूरा सा आंसर लगता है। यस सर। यस सर, और इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे सर आप? आई थिंक ठीक है, ओके, नाउ वी कम पॉइंट टू पॉइंट। सो हियर वी कम, जहां तक क्वेश्चंस की बात है सर, चलिए इसको बात करेंगे। हियर वी कम दैट ओके, चलिए चल जाता 3 क्वालिटीज। हालांकि एनोनिमिटी यार बाद में कर देना, आजकल सोशल मीडिया के दौर में एनोनिमिटी ब्रेक होती चली जा रही है। इस पे सेक्स रेशियो, जस्ट वन थिंग, इस पे हम बात करेंगे। एक तो आप हिंदी में रखिए, इंग्लिश में उतना कंफर्टेबल नहीं है आप, नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं सर। फिर हिंदी में रखिए, ठीक है सर। कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैंने इंग्लिश में शुरू किया था, हाँ सर। आपने थोड़ा इंग्लिश में बोला, उसके बाद हिंदी में आप आए तो और बेटर आपका एक्सप्रेशन हुआ था। यस सर। उसके बाद हिंदी में, तो वहां पे भी आप हिंदी में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो इंग्लिश में पूछे तो आप कह दीजिएगा सर क्या मैं हिंदी में बात हिंदी कर में, सकता हूँ, yes, sir. परमिशन लेके हिंदी में शुरू चाहिए, ठीक है। देन इट कम्स टू भाई, जहां पर एक बड़ी मिस्टेक हुई है वो है वीकनेसेस की गेम में। ओके, Yes, sir. वीकनेसेस की गेम में जो आपने 2 चीजें बताई हैं, थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है सच्चाई हो, लेकिन याद रखिए कि अगर वो आपसे एज अ पर्सनल भी पूछें तो वहां पे थोड़ा सा आप इंटरव्यू देने गए, यस तो सर। ऐसा नहीं हर पर्सनल चीज वहां पे बोली जाए। यस सर। As a bureaucrat, one of the officer-like quality is this tactful. कहाँ पर क्या बात कहनी है, क्या नहीं कहनी है और किस तरीके से कहनी चाहिए, ऑफिसर को भी पता होना चाहिए। आई एम नॉट आस्किंग यू टू लाई, नो, बट व्हाट टू प्रोजेक्ट। तो अगर आपकी वीकनेसेस पूछ रहे हैं वो, तो भी आपको वो एज ए एसडीएम ही जज कर रहे हैं, यस सर। आपकी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको। यस सर। अगर आपकी वीकनेस ही पूछी गई, क्या हो रहा है, देखिए सिंपल, हमें इतना पता है कि इंटरव्यू है, तो आपकी नॉलेज नहीं चेक हो रही है, यस सर। ना, नॉलेज तो प्री ऑडियंस पे चेक हो गई है। यस सर। उनको पता है कि अभिषेक सर यहाँ के बैठे हैं तो इंटेलिजेंट भी हैं, इनके पास नॉलेज भी है, कर लिया उन्होंने चेक। अभी तो पर्सनैलिटी देख रहे हैं। तो अगर आपसे कोई भी सवाल पूछा जा रहा है, दैट इज टू जज योर पर्सनैलिटी, और आपकी वीकनेसेस पूछी गई है तो आपकी पर्सनैलिटी को जज किया जा रहा है। और पर्सनैलिटी किस तौर पे, नॉट अ सुटेबल ग्रूम, रादर एसडीएम, यस सर। डीएसपी, तहसीलदार में भी, ओके। यस सर। तो अब अगर हम ये कहते हैं कि सर मेरे में तो फ्लक्चुएशन बहुत है, मैं एक चीज पे टिकता ही नहीं हूं, सर ब्यूरोक्रेट के लिए पर्सिवरेंस पहली क्वालिटी। यस सर। वन ऑफ द प्राइम मोस्ट, कि आप धैर्य के साथ एक जगह टिके काम करेंगे। अदरवाइज तो सीधा मैसेज आपने दे दिया कि Yes, तुम मुझे sir. सिलेक्ट करो, टिकूंगा मैं यहाँ भी नहीं। तो मुझे एक जिला दे के देखो, मैं नहीं टिकने वाला जिले में। और दूसरा, इसको पहली बात तो ये कहना ही नहीं है, तो अगली बात खत्म हो रही है, फिर भी मैं कहता ठीक हूँ है सर। प्लीज आप अपने पर्सनल पॉलिटिकल ओपिनियन बिल्कुल नहीं बताएंगे इंटरव्यू के दौरान। ओके सर। ये वल्नरेबिलिटी तो शो करनी नहीं है, मतलब एक ये, और उसके बाद जब हमने इसको भी एग्जाम्पलीफाई किया पॉलिटिक्स से, यस मैंने सर। पहले कांग्रेस को सपोर्ट किया, फिर सर ब्यूरोक्रेट तो है न्यूट्रल, आपने एनोनिमिटी की बात की, नॉन पार्टीसन आपने बताया अपनी क्वालिटी में। सबसे पहले ब्यूरोक्रेट की क्वालिटी में आपने सर क्या वो कहा,
यस सर, लेट मी कंप्लीट। ब्यूरोक्रेट की क्वालिटी में सेकंड था नॉन पार्टीसन। यस सर। यहाँ पे आप पूरे पार्टीसन नजर आ रहे हैं, कभी इधर कभी इधर। आप बोलिए क्या कह रहे थे आप? सर वो आपने पर्सनल का पूछा ना सर, उसके बाद आई एम कमिंग टू दैट, आई एम यस कमिंग सर, टू दैट। सर, वो एक मीम चल रहा है ना आजकल, इतना भी सच नहीं बोलना। यस सर, ब्यूरोक्रेट, ओके सर, मैं इसकी रीजन दे चुका हूँ आपको। यस सर, चाहे मैं आपसे पर्सनल पूछ रहा हूँ, उस वक्त भी कुछ हम बताएंगे कि क्या करना है इसको लेके, लेकिन वो आपसे पर्सनल पूछने के बावजूद आपको जज तो एज ए ब्यूरोक्रेट कर रहे हैं ना। यस सर, चाहे उन्होंने आपसे आपका पर्सनल ओपिनियन जानना चाहा, वो आपकी पर्सनल अनचार्टेड टेरिटरी में एंटर कर रहे हैं। यस सर, तो आपको जरूरत नहीं है वो रूम खोल के दिखाने का जो बिल्कुल ब्यूरोक्रेट से सूट नहीं करता। दूसरा दरवाजा खोल के दिखा, जी सर, उस पर हम आते हैं। तो पहली ये चीज, पॉलिटिकल बायसनेस शो करनी नहीं है। ओके सर, कहीं फ्लक्चुएशन वाला आ जाओ तो कह देना, सर मुझे पहले गुलाब जामुन बहुत पसंद आते थे, रिसेंटली मुझे जलेबी प्लस रबड़ी बहुत पसंद आने लग पड़ी है। ये ठीक है, ये ह्यूमन चीज है बहुत ज्यादा, Yes, है ना, वो ठीक है। दूसरा हेस्टी, सर अगेन ब्यूरोक्रेट, हेस्ट इज ग्रेवयार्ड। यस सर, प्रोएक्टिव होना अलग बात है, हेस्ट होना अलग बात है। जल्दबाजी में लिए गए, हम तो आमतौर पे कहावतें बनी है, जल्दबाजी से शैतान, है ना, शैतान का घर है, ऐसा Yes, कुछ sir. कि जल्दी का काम शैतान का, यस सर, है ना। तो हेस्ट, ऐसी चीजें नहीं बतानी है। इंट्रोवर्ट इज ओके, व्हाट वी वांट टू प्रोजेक्ट यू, कि ऐसी वीकनेसेस बताइए जो बहुत जनरल हैं किसी भी एक सूटेबल यूपीएससी या एचएस, आपका जो ये हरियाणा बोर्ड है, इसके कैंडिडेट के तौर पे जो इतनी बड़ी प्रॉब्लमेटिक ना नजर आए। जैसे ठीक है। सर प्रोक्रास्टिनेशन, ये बता सकता हूँ। फिर नहीं, ऐसी नेगेटिव चीजों में हम जाए क्यों रहे? जहाँ पे आपकी एज ऑफिसर नेगेटिव इमेज बनती हो ना, वो वाली वीकनेस नहीं बतानी। आप कहोगे मैं बहुत आलसी हूँ, ऑफिसर इज एक्सपेक्टेड टू वर्क 24/7। यस सर, वो कहेंगे कि अच्छा आप आलसी हो, उन्होंने कहीं भी पकड़ लेना है कि अच्छा आपके एरिया में फ्लड आया हुआ है, तो आप उठ के नहीं जाओगे। बताओ, तो कॉन्ट्रडिक्ट कर गया। कमियां ऐसी चुनो जो एज ऑफिसर आपकी लाइफ इफेक्ट ना करती हो। ये सर जैसे सर रिसेंटली आई ऑब्जर्व कि मैं खाने पे थोड़ा ज्यादा खर्चा करता हूँ। वो पूछेंगे खाने पे कैसे ज्यादा खर्चा, कि सर मैं थोड़ा घर से बाहर रहता हूँ अपनी ड्यूटी के दौरान, अगर मैं रात को एक जगह खाना खाने जाऊँ, मुझे वहां पसंद ना आए, तो मैं कई बार दूसरी जगह खाना चला जाता हूँ। तो मुझे लगता है सर ये ज्यादा खर्चा है। इसमें आप अपने आप को एक्स्ट्रा वेरिएंट नहीं बल्कि मितव्ययिता शो कर रहे हैं, बैलेंस कर दे रहे हैं। यस सर, ठीक है। या फिर कि सर अभी जॉब के दौरान और किस चीजों को मैसेज करना होता बताना नहीं होता, कि सर थोड़ा इस वक्त मैं अपना जो है स्लीप मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा हूँ या हेल्थ मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। यस सर, तो जस्टिफाई क्यों, आप जॉब भी कर रहे हो, आप तैयारी भी कर रहे हो, यस दिस इज वेरी नेचुरल। वहां पे बैठे बोर्ड मेंबर को भी लगेगा यार ये तो यार मेरे में भी है यार कमी, यस मैं सर, भी यार वर्कलोड है पिछले 60 सालों में, यार मैं भी स्लीप मैनेजमेंट तो नहीं कर पाया, मैं कौन सा ब्यूरोक्रेट स्लीप मैनेजमेंट कर पाया या हेल्थ इतनी ज्यादा मैनेज कर पाया। यस सर, इस तरह की जनरल सी चीजें जिनका ब्यूरोक्रेटिक इम्प्लीकेशन इतना ज्यादा ना हो। यस सर मैं थोड़ा अपनी स्लीप, पूरी नींद नहीं ले पा रहा हूँ आजकल, या मैं अपनी हेल्थ पर उतना ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ जितना मुझे देना चाहिए, ऑल्दो यू आर हेल्दी, Yes, ऐसा नहीं आप ओबीज हो गए। यस सर, इस तरह की जनरल सी चीजें जो ऑलमोस्ट इंसान में होती या फिर एक ब्यूरोक्रेटिक बिजी इंसान में होगी, जब आप अपनी लाइफ सेवा के लिए समर्पित कर रहे हैं, वहां पे आप उतना अपडेट नहीं रख पाएंगे। इस तरह की कुछ चीजें नॉट लेके आए। डू नॉट ओपन योर ग्रेव वल्नरेबिलिटीज। ओके सर, खासकर ऐसी चीजें नहीं बोलनी है जो ब्यूरोक्रेटिक एथिक्स के ही या ब्यूरोक्रेटिक क्वालिटीज के खिलाफ जाती है। सर मैं जब ये बोल रहा था मेरे को खुद लग रहा था कि ये गलत है ये चीजें, क्योंकि मतलब हाँ, वो वो पकड़ assess लेंगे सर, वो वही तभी। बिल्कुल बिल्कुल साउंड रैशनल। हाँ, हम लोग सर। जो भी बोल रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं ऐसा ही करना। आप यार यहाँ तक पहुंचे हैं ऑलरेडी, है ना, आप टीचर हैं, आप अपने भी तर्क के आधार पर परखें कि कौन सी चीज बेहतर है, Yes, आप sir. वो यूज करें। ऐसा ना, अल्टीमेटली तो आपने परफॉर्म करना है। ओके सर प्लीज। मुझे आपकी ओवरऑल बहुत अच्छी लगी इंटरव्यू, इसीलिए आपको 2-3 एरियाज पे थोड़ा ज्यादा ग्रिल किया गया, जस्ट टू चेक कि आप कहाँ तक जाते हो। जैसे पाकिस्तान पे, Yes, है ना, तो वहां पे थोड़ा थोड़ा बेसिकली मुझे लेवल पता चल गया कि आप यहाँ तक हो। अदरवाइज अगर मैं पूछता रहता आप सारे आंसर्स परफेक्टली करते रहते, तो मतलब कि ठीक है वो एरिया आपका परफेक्ट है। जैसे मैंने जनरल्स के नाम पूछे तो आपने वो सही बताया कि 4 बार लगाया, लेकिन 3 के नाम बताए आपने, यस सर, है ना, कि याहिया खान का नाम नहीं आया होगा आपके माइंड में। यस सर, ये तो ठीक है कोई बात नहीं, बट अच्छा था वो, मतलब उन आंसर से पता लगा कि आपको आपकी वो हॉबी है।
उसमें आपने एक दो जगह क्या गड़बड़ की, जैसे आपको 3 ऑब्जर्वेशंस मैंने पूछी इंडिया पाकिस्तान के बारे में। तो एक में आपने बोला, सर ने पूछा था, तो एक में आपने बोला कि वहां के लोगों में नफरत है हमारे लिए बिकॉज उन लोगों को एक्सप्लॉइट किया गया था। एक्सप्लॉयटेशन अब तक याद है, अब ये तक आपका याद है। स्टेटमेंट। वो सर वो शब्द मैं सच में बोलते ही मैं समझ गया था ये गलत है सर। तो वो ये तेल निकल गया ना अब ये उससे, सर वही। तो ये प्रॉब्लम है ना। आपको ये कभी नहीं कहना है कि वहां के लोगों में हमारे लिए नफरत है। आपने शुरू बहुत अच्छा किया था कि हमारी यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिविलियन है ही नहीं, वहां पे आप ही का कंट्रोल था। तो अ वेरी गुड स्टार्ट। यस सर। लेकिन सेकंड आपने बोल दिया कि वहां के लोगों में हमारे लिए नफरत है, जो कि अपना पार्टीशन के टाइम से। ये नहीं बोलना आपने। आपको ये बोलना है कि पीपल टू पीपल एक्सचेंज तो अच्छे होते रहे हैं हमारे यहाँ पे, कि वहां के सिंगर्स के यहाँ कॉन्सर्ट, लाइक जस्ट गिविंग एन Yes, sir. एग्जांपल। पीपल टू पीपल एक्सचेंज में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वेस्टेड इंटरेस्ट वर्ड यूज कर सकते हो आप, Yes. टेररिस्ट वर्ड यूज कर सकते हो। देन आपने पढ़ा ही हुआ है, आपको पता है कि वो पूरी टाइमलाइन अगर देखें इंडिया पाक रिलेशंस की, एक जब भी कोई पीस इनिशिएटिव होता है उसके पैरेलल ही एक तैयारी चल रही होती है कि इसको कैसे रोका जाए। Yes, sir. पता ही है आपको। Yes, sir. 2001 में हुआ, 2000 में हुआ, 2008 में हुआ, यस सर। 2014-15 में हुआ। Yes, sir. जब जब इनिशिएटिव होता है तब तब ऐसा होता है। अब आज भी गारंटी है कि अगर मोदी फिर सोचे कि हम थर्ड टर्म आ गई है हमारी, कि लेट अस अगेन मेक एन ओवरचर टू पाकिस्तान, कि चलो नवाज शरीफ को बुला लेते हैं रोज सेरेमनी पे, अभी 2-4 दिन हफ्ते में फिर कुछ हो जाना था। इट्स बाउंड टू हैपन। तो आपको पता ही है वो चीज, है ना। तो आपने ये बोलना है कि मिलिट्री गवर्नमेंट है, हमारी सिविलियन गवर्नमेंट है, इसलिए कभी पीस नहीं बन पाता। दूसरा कि वहां के लोगों में हेट है, ये नहीं बोलना आपने। आपने बोलना है कि वेस्टर्न इंटरेस्ट्स हैं जो ये चाहते ही नहीं कि इंडिया और पाकिस्तान में कभी पीस हो पाए। Yes, sir. एंड थर्ड आप यहाँ पे बोल सकते हो कि जो जियोपॉलिटिकल पावर्स हैं उनके भी वेस्टर्न इंटरेस्ट्स हैं, दे डोंट वांट दिस रीजन टू बी पीसफुल। यस सर। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स वाली थ्योरी बता सकते हो आप, कि इंडिया जो है वो रशिया के ज्यादा करीब है, जो पाकिस्तान है वो, हालांकि इतना खींचने की जरूरत नहीं है। जैसे थर्ड आंसर था आपका, उसमें आपने बहुत खींचा। जब आप उसमें चले गए कि यूएसएसआर ने इन्वेड किया, फिर मुजाहिदीन आए। आपको पता है अगर उस चीज पे मैं आपको खींचने पे आऊं तो कहां तक ले जा सकता था। यस सर। उस आंसर से आपका ऐसा लगा कि आप ये दिखाना चाहते हो कि हाँ मेरे को पाकिस्तान के बारे में बहुत पता है। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर बोर्ड पे कोई भी एक ऐसा मेंबर हुआ जिसको आपसे ज्यादा नॉलेज हुई, विच इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, यस सर। या फिर कोई गलती से मेजर जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का रिटायर्ड बैठा हुआ वहां पे, आपको लगता है कि आपको पाकिस्तान पे उनसे ज्यादा पता होगा। नहीं सर। तो आपका ये एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, लेकिन उनसे ज्यादा नहीं है। यस सर। सो दे विल ऑलवेज टेस्ट योर लिमिट। जैसे मैं भी सिक्योरिटी पढ़ाता रहा हूँ, तो अगर मैं आपको एक्सटर्नल सिक्योरिटी पे खींचने पे आता तो मैं इसको बहुत आगे ले जा सकता था। Yes. देन आई वुड हैव स्टार्टेड यूजिंग टर्म्स जो आपने कभी ना सुनी हो। फिर आपको लगता, उससे क्या होता है ना कि आपकी हॉबी है, लेकिन आप कहीं ना कहीं ऐसे झूठे साबित हो जाओगे, यार अच्छा मुझे इसके बारे में तो पता होना Yes, चाहिए sir. था। यू विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ। द पॉइंट इज कि आपकी हॉबी उनकी भी हॉबी है ना अगर, देन इट इज डेडली। अब आपने यहाँ पे फार्मिंग लिखा हुआ है, कोई ना कोई अगर किसान बैकग्राउंड से हुआ, जो कि बहुत हाईली एक्लिवेड आई थिंक, यस सर। तो आप सोचो आपको कुछ भी पूछ ले वो फार्मिंग में, फार्मिंग इज अ वर्ल्ड इन इटसेल्फ, पूरी दुनिया खुल जाती है। यस सर। तो हॉबीज आपने जो दोनों मेंशन किए हैं या बताई है ना, वो बोर्ड मेंबर्स की भी हॉबीज या उनका प्रोफेशन रहा होगा, इट्स अ वेरी हाई लाइक्लीहुड। तो आई थिंक यहाँ पे आपको थोड़ा सोचना चाहिए। थोड़ा सा व्हाट वी वांट टू से सर, हाँ जी, हाँ जी। ये थोड़ा सा पेंडोरा बॉक्स, हम्म, दोनों हॉबीज। हम आपको डरा बिल्कुल नहीं रहे। द पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन, लाइक अगेन वी डिडंट गो पीओके इशू, क्या पीओके ले लेना चाहिए? अब तो गठबंधन की सरकार आ गई, अब कैसे लोगे? व्हाट इज इरिडेंटिज्म, पुतिन स्टाइल ऑफ वर्किंग, स्टालिनिस्ट अप्रोच? पेंडोरा बॉक्स ओपन होता है, तो थोड़ा उसके लिए तैयार रहिएगा। ये थोड़ा सा एक चक्रव्यूह की तरह है कि एंटर हो जाता है आदमी, निकलना मुश्किल हो जाता है। तो वी आर नॉट हम आपको डरा बिल्कुल नहीं रहे, इसके लिए थोड़ा तैयार रहिएगा। अगर ये लिखते हैं तो थोड़ा अप्रोच कि कहाँ तक मुझे अंदर जाना है। जैसे एक एग्जांपल जो सर पूछ रहे थे और फिर आपने कहा कि वो सर मुजाहिद, आपने सिर्फ इंडो पाकिस्तान की पीस टॉक्स के ऊपर, वो सक्सेस क्यों नहीं हो पाता? एक नया फाउंडर ऑफ बॉक्स कैसे ओपन हो रहा है? यू गो टू यूएसएसआर इन्वेजन इन अफगानिस्तान, उसी में आप CIA को ले आए, US को ले आए, अफगानिस्तान को ले आए, और साथ में आप मुजाहिदीन को ले आए। आप सोचिए कि कितना वाइड एरा ओपन हो चुका है क्वेश्चन पूछे जाने का। यस सर। तो हम क्या कर रहे हैं?
हम खुद वनरेबिलिटीज ओपन कर रहे हैं, तो होगा क्या, वी विल ओपन एंड डिस्कशन, और अगर वहां कोई एक्सपर्ट बैठा हुआ, वी विल बी गोइंग इनटू स्लेव कार्ड, वहां पे फिर मसैकर होगा। समझ रहे हैं, वनरेबिलिटीज बहुत ओपन नहीं करनी। कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि यहां तक जाने के बाद अब निकलो वहां से, उस डिबेट से निकलो। यस सर। यू नेवर नो, मतलब यही होगा कि अगर इस पे ही आपसे 5 7 8 क्वेश्चन हो गए, मिलने तो वही 20 मिनट है, 22 मिनट है, यस सर। तो बजाय कि इसको स्ट्रेच करने के, कट शॉर्ट डिबेट, अगला क्वेश्चन लाओ सर, किसी और बोर्ड मेंबर की आने दो, शायद वो बॉल आ जाए, इस पे मैंने सिक्सर मारना है। तो सिर्फ एक कॉशन है कि हॉबी थोड़ी सी पेंडोरा बॉक्स है, थोड़ा सा। क्या कुछ चेंज करना चाहिए सर? आंसर्स को ओवर स्ट्रेच मत करो। आंसर है सर। जैसे मैंने आपसे पूछा था कि पाकिस्तान के बारे में पॉइंट बाय पॉइंट कोई 2-3 चीजें पूछ ली मैंने आपको, आप वो ज्यादा खींच के, तो वहीं पे रोक दो बस। आपका है एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, एक्सपर्टीज उस बंदे की नहीं होती जो किसी टॉपिक पे 5 मिनट बोल सकता है। एक्सपर्टीज उस बंदे की होती है जो 5 मिनट के टॉपिक को 50 सेकंड में समराइज कर दे, है ना, लेस वर्ड्स मोर टॉक, ये होता है एक्सपर्टीज, जो कि आपकी दिख रही है पाकिस्तान पे है आपको, बट आप ज्यादा मत खींचो उसको। उसमें से आप कीवर्ड्स दे रहे हो बहुत सारे, जैसे मैंने एक वर्ड उठाया मुजाहिदीन, उससे पूछ लिया, अब उसमें से जो आपने बोला था उसमें से मैं एक वर्ड उठा लेता, नॉन अलाइनमेंट पे चला जाता, डोंट डू दैट, है ना, ओवर स्ट्रेच मत करो, ओवर स्टेप मत करो आंसर। कहीं पे आपको लगे कि अब मेरे जोन से बाहर जाने वाली बात, कम आउट ऑफ इट, सॉरी सर, आई डोंट नो। ये ऐसा नहीं होगा कि आपको इस बात पे जज किया जाए कि कितने क्वेश्चन के आंसर दिए, कितने के आंसर नहीं दिए, इस बात पे जज नहीं करते हैं। इट्स परफेक्टली फाइन टू से सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, सर पढ़ा तो था भी आप, सर मुझे इसके बारे में नहीं पता है ना। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप ना कर सकते हैं, बट जहां आपको लगे कि अब रेड जोन में खींच रहे हैं आपको, तो कट शॉर्ट यार अपने पे रखो, आप थोड़ा फिजिक्स पे रखो उनको, आपकी फिजिक्स एक्सपर्टीज है ना, आप थोड़ा टीचिंग की तरफ लेके आओ उनको, इस तरफ लाने की कोशिश कीजिए, दिस द थिंग, है ना। ये सारी चीज तो सी अभिषेक, व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड, यू आर एक्सट्रीमली ऑनेस्ट पर्सन, मैं आपके जवाब से क्लियर है, बिल्कुल ऑनेस्ट पर्सन, और ऑनेस्ट लोगों की बहुत जरूरत है ब्यूरोक्रेसी को। और जो आपका प्रोफाइल है हेवीली आपके हक में, आप अच्छे कॉलेज से पढ़े हैं, आप ऑलरेडी फिजिक्स जैसी चीजों में ठीक है, और ऊपर से आप टीचिंग के लिए सिलेक्ट, ओके, यंग हैं आप, डायनामिक हैं, तो इन चीजों को लेके वो खुद चाहेंगे कि आपको सिलेक्ट करे, ऐसे लोगों की जरूरत है। बट हमें इस 20-22 मिनट में ऐसी कोई गलती नहीं करनी कि हमारे इंटरव्यू में कम मार्क्स आए। Yes, अल्टीमेटली इट इज नॉट सिलेक्टिंग और रिजेक्टिंग इन द इंटरव्यू इटसेल्फ। मेंस कैसा हुआ? सर मेंस ठीक हो रखा सर मेरा, ठीक हुआ कि अच्छा हुआ है? मतलब सवाल सारे करके आता है सर, मैं अटेम्प्ट ऐसा कोई सवाल नहीं था मैं छोड़ के, और Physics कैसा हुआ? फिजिक्स बढ़िया गया था सर। फिजिक्स अच्छा हुआ है? हाँ। तो स्कोर करोगे अच्छा, हाँ ठीक है। तो आपको ही पता है इट्स नॉट अबाउट सिलेक्टिंग और रिजेक्टिंग इन द इंटरव्यूज, इट इज द मार्क्स। तो हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे यहाँ पे भी, है ना। तो अगेन आपका बहुत अच्छा है, कुछ कमियों की वजह से अगर वही चीज है कि वो लिख के बैठा हो कि ओके 45 मार्क्स लूंगा, जस्ट हाइपोथेटिकली, और फिर अगर ऐसी हमने कुछ वीकनेस वाली कुछ और कमियां दे दी, वो रिड्यूस करना शुरू कर देगा। यस सर। यू गॉट माय पॉइंट? तो ऐसे लोग बोल नहीं, बस ये चीजों का ध्यान रखना, रेस्ट तो ऑल फाइन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑनेस्ट लोगों की बहुत जरूरत है। एक चीज, दो चीजों के ऊपर, यार यूज योर स्माइल मोर, थोड़ा और, है ना। सर मैं ये कैमरे से थोड़ा, कैमरा देख के सर मैं थोड़ा सा वो हो गया, वरना तो मैं ठीक था सर। अरे तो क्या हुआ? चलिए वहां नहीं होगा कैमरा, सर ठीक है, थोड़ा और स्माइल कीजिएगा, बी कंफर्टेबल। कितने बजे का स्लॉट मिला आपको? सर 12 नून का, 12 ओके, 12 तारीख को, Yes, 13 है सर। 13 सी, वहां पे सब लोग 60+ हैं। 12 बजे के आसपास वो कुछ इंटरव्यूज ले चुके होंगे, लंच टाइम होने वाला होगा, उनकी खुद की एनर्जी लो आई होती है। सो इट्स ऑन योर शोल्डर कि आप उनकी एनर्जी को थोड़ा लिफ्ट करें, तो विल बी थोड़ी मोर एनर्जी, थोड़ी आंखों में चमक, है ना। जब आपकी हॉबी की बात हो रही हो, खासकर थोड़ी आंखों में चमक, थोड़ी स्माइल, उस हिसाब से रोबोटिक नहीं, हर चीज का एक ही टोन एंड टेनर में नहीं। कोई सेंसिटिव बात है आप चुप हो जाइए, कि अगर मैं गाजा की बात कर रहा हूँ, विक्टिम्स की, आप सीरियस हो गए, संजीदा होकर बात करेंगे। वहीं अगर आपकी हॉबी की बात आ गई तो आपकी पसंदीदा चीज है ना, यस सर। तो आप थोड़ी स्माइल के साथ बात करेंगे, ठीक है। तो एक स्माइल रखिएगा, और बाकी तो सारी चीजें हम डिस्कस कर ही चुके हैं। रेस्ट तो ऑल इज इन योर फेवर। बस आपने रॉन्ग शॉट्स नहीं खेल रहे हैं वहां पे, जो आपको इस बार एहसास भी हुआ Yes, sir. बोलते बोलते कि रॉन्ग शॉट हो गया। सर मेरा एक तो वो हिंदी वाला सर, मैं हिंदी में ही दूंगा सर इंटरव्यू ओके, जाके। हिंदी रखो, ठीक है। Yes, गर्व sir. से हिंदी रखो, और अगर वो इंग्लिश में शुरू भी करें
आप थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलने के बाद जो आपको इंट्रो वगैरह कंफर्टेबल हो, उसके बाद कि सर क्या आपकी इजाजत से मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ, या है ना, परमिशन से हिंदी रखो आप। वैसे तो सर मैं अभी एचपीएससी में ये पीजीटी का लेक्चरर का ये भी दे के आया, वहीं पे दे के आया था सर अभी। हाँ, गुड। तो वो इतना तो नहीं, पहले से मैं हूँ तो उसमें मतलब एक बार गया हूँ बोर्ड के सामने। बहुत बढ़िया, अच्छी एक्सपीरियंस करेगा सर तो आपके और भी डाउट हो वो पूछिए। सर इसमें मतलब फिर हॉबी का क्या करना सर, ये मैं थोड़ा सा बैकफुट पे चला गया। क्या करते हो आप एक्चुअली? सर मैं सुनता ही time- पाकिस्तानी सुनता हूँ सर मैं फिर पूरा दिन तो। पाकिस्तान के बारे में सुनते हाँ रहते हो? मतलब उनके न्यूज़पेपर पढ़ना, खाली टाइम हुआ तो न्यूज़पेपर पढ़ लिया। कोई किताब पढ़ी है जैसे गैरिसन स्टेट? ये सर गैरिसन स्टेट तो पढ़ी है? नहीं पढ़ी थी सर, मुल्ला एंड मिलिट्री नेक्सस सर, अच्छा, ये पढ़ी थी सर, हुसैन हक्कानी की। अभी क्या है ना कि इवॉल्व हो रही है इनकी हॉबी थोड़ी। हम्म, ये अभी आप चाहे आप इसको सालों से रोज रोज भी पढ़ रहे हो, इस तरह की हॉबी ना, मतलब इट कैन टेक डेकेड्स टू मास्टर। आप समझ रहे हो? जैसे एस जयशंकर जी कहते हैं कि माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज इज न्यूक्लियर नेगोशिएशंस। अब अगर कोई सोचे कि मैंने 10 बुक्स पढ़ ली है न्यूक्लियर नेगोशिएशंस पे या न्यूक्लियर ट्रीटीज पे और मैं उसमें एक्सपर्ट हूँ, एंड हियर इज अ मैन हु हैज 40 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन फॉरेन सर्विस, जिन्होंने पीएचडी की जेएनयू से न्यूक्लियर उसमें यस सर। आईआर में, और 40 साल से वो डिप्लोमेट रहे हैं और 5 साल से वो फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं। तो वो अब कह सकते हैं, और उनको पूछा है कोई और एरिया बताइए, कहते कोई और एरिया मुझे लगता नहीं कि मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है। मतलब ये एरिया आपने ऐसा उठा लिया। सेम वे फार्मिंग, आप कुछ थोड़ा सिंपल रखिए, आई थिंक कुछ और नहीं करते हो आप फिजिकली एनीथिंग, कोई स्पोर्ट कुछ भी? सर क्रिकेट खेलता हूँ बस, और कुछ नहीं। क्रिकेट खेलते हो? हाँ। क्रिकेट के पर बारे में इतना मतलब वही टाइम नहीं मिलता तो हफ्ते में खेल लिया एक बार। जैसे 2018 से आपने मास्टर्स की हुई है तो 6 साल से आप प्रिपरेशन में ही है यस सर। फुल टाइम? मतलब ये साथ में एजुकेशन की भी तो की सर, ये बैचलर ऑफ एजुकेशन भी किया सर साथ में, बीएड। उसके बाद कोई और डिग्री की है? बीएड की है? हाँ बीएड किया सर, कौन से साल तक? ये 18 से 21 किया सर। 3 साल की? सर वो बीच में कोरोना आ गया था, मैं बीमार हो गया पेपर में सर, अच्छा तो अच्छा पेपर अच्छा, दे नहीं पाया 1 साल के सर। ठीक है ठीक है ठीक है। यार रख लो, क्योंकि आपकी जेन्युइन सी हॉबी है, आप इस पे हो, ओवर स्ट्रेस मत करना। और फार्मिंग में सर जैसे मतलब अगर इसमें ये भी सर लग तो ये सब डोमेन तो बहुत बड़ा लग रहा है मेरे को, खुद भी बड़ा लग रहा है सर अभी ये। कल का न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा है कि कुछ 1000 एकड़ जमीन जो है उसमें कोई बीमारी लग गई है, जिसकी वजह से फसल खराब हो रही है। ऐसी ऐसी चीजें पूछ लेंगे। कितने टाइप की क्रॉप्स होती हैं, क्रॉपिंग सीजन, रबी खरीफ, फसलों के नाम बताओ, मिलेट्स में क्या क्या आता है, सर ये तो मैं हैंडल कर सकता हूँ। मौसम का हाल, मौसम का MSP इशू, एमएसपी इश्यूज, हाँ, इम्प्लीमेंट्स वगैरह, कितने इवन कितना सीड डलता है वो सब भी सर। घर में फार्मर है? हाँ सर पापा फार्मर ही हैं, मैं अच्छा, खुद अच्छा। करता हूँ सर। देखिए खेती ऐसे तो हमारे भी घर वाले फार्मर है, हमने देखी नहीं भाई कभी। हाँ, आप बताओ, देखी है खेती? खेती करी है सर हमने, नक्का मोड़ना आता है? वही मोड़े हैं सर। रख लो बस। अभिषेक, इसको ना जहां आपको लगे कि अब ओवर स्ट्रेच हो रहा है, हाँ उसको सर मैं थोड़ा सा क्योंकि यू वन थिंग सर, यू आर नॉट एक्सपर्ट ऑफ दीज थिंग्स, यस सर। यू आर हैविंग हॉबी। तो जहां पे आपको लगे ना कि अब ये मुझे एक्सपर्टीज में उठा के डालने की कोशिश कर रहे हैं और मैं वहां जाना नहीं चाह रहा हूँ, यस सर। सॉरी सर, इसके बारे में नहीं पता है, स्माइल, निकलो वहां से बाहर। वहां अपने कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना कि हाँ, मेरे से confidence पूछ लिया, मेरे को मेरी हॉबी मैंने मेंशन करी है, मुझे आता नहीं आता। हॉबी है वो, मैं प्रो थोड़ी हूँ उसमें। रखो रखो, बैक फुट होके नहीं जाएंगे यार, हम जाएंगे फ्रंट फुट पे, नंबर लेके वापस आने हैं वहां से, यस सर। ठीक है? इस अप्रोच से जाना है कि यार मैं हूं, मैं वर्दी कैंडिडेट हूँ, यस सर। मुझसे बेहतर और कोई नंबर कैसे लेगा, तो नंबर कह के लेके आना है, तो फ्रंट फुट पे ही जाना पड़ेगा। घबरा वगरा के मैं ये बोलूँ वो बोलूँ, उसका फायदा नहीं है। इतना ज्यादा होता ना कि आपका तैयारी ना होता, ठीक है? यही नहीं पता होता कि 4 जनरल कौन थे, हाँ सर। है ना, यस सर। या 4 प्रोविंस नहीं पता होते, ठीक है? यस तो फिर हम कहते हैं भाई अब रहने दो, प्लीज कुछ ऐसे लिसनिंग मोहम्मद रफी कर लो, सर। यस सर। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट रफी साहब, है ना? तो बट अभी आपका तैयार है, जाओ इसके साथ। और सर एक मेरी जो अप्रोच फॉर्मल थी या सर इनफॉर्मल में बीच में था, थोड़ा सा कई बार थोड़ा कैजुअल हो जाता है, उसको या तो ऑनेस्टी कह लें या कैजुअल, क्योंकि शब्दावली तो आपकी ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक है, फॉर्मल था, कुछ ऐसा खास लगा नहीं, ठीक लगा। फॉर्मल है, फॉर्मल। और सर ज्यादा तो है ना मैं कैमरे से घबरा गया, वरना तो मैं थोड़ा सा, आप स्माइल मेरे रहता सर।
बस सर वो एकदम हो गया कि कैमरा है बस वो इससे सर। तो वो तो ऐसे ही बोर्ड के सामने जाके आपको लोगों से भी लग सकता है। नहीं सर, लोगों से नहीं लगता मेरे को, ठीक कैमरे से लगता है सर। है, नेचुरल, कोई इशू नहीं, कोई बात वो दिमाग में रहता है कि आप रिकॉर्ड हो रहे हो, तो नहीं। ओके वो ओके, वो थोड़ा सा हो गया सर। ठीक है, होता है, मुझे भी थोड़ा होता है कैमरे से आफ्टर सो मेनी इयर्स। ठीक है, नेचुरल है, कोई दिक्कत कोई नहीं। बात एनीथिंग एल्स? नहीं सर। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छा है आपका। इन जो डिस्कशन किया इसमें जो आपको लगता है इस चीजों पे है ना काम करना चाहिए, उस पर थोड़ा मेंटर वो सर जो मेरी वीकनेस है उन पे थोड़ा काम करता हाँ हूँ। हाँ, उसको थोड़ा और Yes, sir. और ह्यूमेन साइड करो उसको। थोड़ा ब्यूरोक्रेटिक वे में उसको डिलीवर करने की कोशिश। पर्सनल बहुत ज्यादा कहीं जैसे बाई चांस वो पूछने निशान वोट किया है, किसको वोट किया? सर ऐसे वो पूछ सकते हैं। चलो मैं हाँ पूछ रहे हैं, चलो किसको वोट किया इस बार? सर कांग्रेस को क्या है सर? फिर पार्टीशन नहीं बताना सर, माफी चाहूंगा, यस सर, वो ये सीक्रेट सीक्रेट वोटिंग। ये मैं रिवील नहीं करना चाहता दोबारा। अरे फिर क्या हो गया, हम ही लोग तो बैठे हैं, बात थोड़ी किसी को बताना है। हम कौन सा टीवी पे कह रहे हैं, बताओ किसको वोट किया? कि सर मैं दोबारा माफी चाहूंगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल सेट सीक्रेट सीक्रेसी ऑफ वोटिंग है सर, इट्स अगेंस्ट द रूल्स है सर, मैं इस बात का जवाब नहीं देना चाहता। बहुत हम्बलनेस के साथ नहीं सर देना। ये पॉलिटिकल वाले तो मैं पहले वैसे सोच के रखा था कि मैं नहीं, बट वो मेरे को कुछ याद ही नहीं आया वो जब वो कहा, तो मैं एकदम से फिर वो थोड़ा काम योर नर्व्स, वो काम मैंने ना सोचा ये और सर वो मेरे थोड़ा अकॉर्डिंग से चलेंगे, बी महेंद्र सिंह धोनी, ये प्लान ए नहीं तो प्लान बी मेरा तैयार है, और गेम मेरे कंट्रोल में है, Yes, एंड इट्स जस्ट 20 to 25 minutes, दैट्स इट। ठीक है, ओके, एनीथिंग एल्स? नहीं सर, थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द Thank you. बेस्ट। ऑल द बेस्ट।